اردو میڈیا کے 200 سالہ اس جشن کے موقع پر آپ سب کا استقبال ہے۔ حسرت جہاں ایک آرٹسٹ بنایا ہے جس کا نام اس میں لکھا ہوا ہے، حسرت جہاں آرٹسٹ کے ہم ممنون ہیں، ہم ان کے آبھاری ہیں کہ انہوں نے پریس کلب کو یہ آرٹ بنا کر پیش کیا ہے۔ اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر بھارت میں صحافیوں کی سب سے قدیم اور معروف تنظیم پریس کلب آف انڈیا نے اپنے یہاں جشن کا اہتمام کیا اور ایک تقریب منعقد کر کے ملک کے سرکردہ صحافیوں کو مدعو کیا اور انہیں اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ اس اہم ترین تقریب میں ہندوستان کے پہلے شہید صحافی مولوی محمد باقر کی تصویر کی بھی نمائش کی گئی، جسے پریس کلب میں آویزہ کیا جائے گا۔ مینیجنگ کمیٹی کے رکن AU آصف نے بتایا کہ گزشتہ دنوں کلب کی جنرل باڈی نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں شہید مولوی محمد باقر کی تصویر آویزہ کی جائے گی، کیونکہ وہ پہلے ایسے صحافی ہیں جسے انگریزوں نے سچ لکھنے کی پاداش میں 1857 میں شہید کر دیا تھا۔ اردو صحافت کے 200 سالہ جشن کے اس تقریب میں ہفت روزہ نئی دنیا کے بانی اور ایڈیٹر شاہد صدیقی، سہارا گروپ کے CEO اپیندر رائے، معروف صحافی قربان علی، پریس کلب آف انڈیا کے سیکرٹری جنرل ونے کمار، معروف جرنلسٹ روہنی سنگھ، نیوز ایجنسی UNI کے سابق ایڈیٹر شیخ منظور، روزنامہ انقلاب پٹنہ کے سابق ایڈیٹر احمد جاوید، معروف فلم رائٹر لوین تھدنانی، روزنامہ سہارا کے ایڈیٹر عبد الماجد نظامی، نیوز 18 اردو کے ایسوسیٹ خالد ملا، ملت ٹائمز گروپ کے چیف ایڈیٹر شمس تبریز قاسمی، عرفان وحید، عارف اقبال، ڈاکٹر صبیحہ ناہید، احمد علی برقی اعظمی، محمد توحید عالم سمیت متعدد سرکردہ صحافیوں نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پریس کلب کے صدر اماکانت لکھیرا نے صدارت کی اور سینئر صحافی AU آصف نے نظامت کا فریضہ انجام دیا۔ آئیے سنتے ہیں اس تقریب میں آئے صحافیوں نے کیا کہا۔ اور ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ابھن انگ ہے، لیکن اردو کے معاملے میں افسوس کے ساتھ ہم نے یہ بات نہیں مانی اور ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ پاکستان کی زبان ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اردو 1947 میں سرے بازار قتل کر دی اور ہماری آزادی کے جو رہنما تھے جواہر لال نہرو، ایون گاندھی جی کی زبان ہندوستانی تھی، وہ اسکرپٹ کہتے تھے کہ دیوناگری بھی ہو اور پرشین رسم الخط بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ تمام لیڈر، خاص کر کے جو نارتھ انڈیا کے لیڈر تھے، ساؤتھ انڈیا والوں کی تو بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بیچارے ہندی بھی نہیں جانتے، ہندوستانی بھی نہیں جانتے، تو اردو کیوں امید کریں ان سے، لیکن چاہے وہ UP کے وزیر اعلیٰ اور بعد میں ہوم منسٹر گووند بلبھ پنت ہوں، لال بہادر شاستری ہوں، چودھری چرن سنگھ ہوں، ایون مورارجی دیسائی جو گجرات سے آتے تھے، چیف منسٹر بننے کے بعد بامبے اسٹیٹ کے، انہوں نے اردو سیکھی، لیکن جب اردو کو اس کا درجہ دینے کی بات آتی تھی تو افسوس کے بعد کہ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوا اور ہمیشہ یہ کوشش کی گئی کہ یہ مسلمانوں کے اپیزمنٹ کے لیے ایک جملہ ڈال دیا جاتا تھا ہر مینیفیسٹو میں کہ ہم اردو کو سرکاری زبان بنائیں گے یا دوسری زبان بنائیں گے۔ انقلاب ہے سیاست اور ادب کا امتداد، ایک انقلاب جس کے ہیں ادبی شمار روح پرور ہفتہ وار، جس کے ہیں ادبی شمار روح پرور ہفتہ وار لڑ رہے ہیں ان دنوں اپنی بقا کی جنگ کو، لڑ رہے ہیں ان دنوں اپنی بقا کی جنگ کو۔ آج طول و عرض میں اخبار ہیں جو بے شمار، آج طول و عرض میں اخبار ہیں جو بے شمار۔ زبانبندی کی جو بات، ایک قانون بنا تھا، اس کے بعد 1910 میں اور 1931 میں بھی ایسے قانون بنے جو ہماری سوچ سمجھ اور لکھنے پر پابندی لگاتے تھے۔ تو ایسی صورت میں مجھے یاد ہے کہ جتنا میں نے پڑھا ہے کہ جو پردیش میں یا گوری حکومت جو تھی اس میں، وہاں تو پوئٹری جرنلزم نہیں ہے۔ اس دیش پر حکومت کرنے والے جتنے آکرانتا ہے، جتنے راجا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پد چہن چھوڑے، اپنے نشان چھوڑے، اپنی بڑی بڑی مورتیاں بنوائی، اپنے نام پہ سڑکیں بنوائی، اپنے نام پہ نلکے لگوائے،
अपने नाम पर सराहें बनवाई, अपने नाम पर वो सब कुछ किया जो अपनी उनकी यश और कीर्ति को जिंदा रहने के लिए किया जा सकता है। आज भी शब्द बदल गए हैं, तरीके बदल गए, मायने बदल गए, लेकिन चाइना क्या करना चाहता है? चाइना भी अपना साम्राज्यवादी विस्तार करना चाहता है, और साम्राज्यवादी विस्तार करेगा तो क्या होगा? उसकी भाषा मैंडेरियन, 1 लाख अल्फाबेट वाली भाषा भी दुनिया को सीखनी और जाननी पड़ रही है। हम इकट्ठे रहें, और जैसे कि साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था, जब अंग्रेज़ों को उर्दू और हिंदी में, हिंदुस्तानी में अपनी ताकत के बल पर उनको हिंदुस्तान से भगाया था, तो साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था, वो वक्त गया, वो दौर गया जब 2 कौमों का नारा था, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था। अब एक हैं सब हिंदुस्तानी, अब एक हैं सब हिंदुस्तानी। है जिसको हम मुसलमानों के साथ या इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं, ये हम सरासर एक प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं, एक गलत नोशन है जो चल रहा है। सिखों के हवाले से मैं ये बात कह सकती हूँ कि बाबा नानक की या सिख गुरुओं की या गुरु ग्रंथ साहिब की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जो राइटिंग्स हैं वो उर्दू में हैं। तो जब मैंने नानक पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो फारसी में लिखा है, ये तो उर्दू में लिखा है। हर वक्त किसी को ढूंढो कि कोई आके मुझे तर्जुमा करके दे या कोई बैठ के पढ़ के सुनाए कि क्या है। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। ऑर्गेनाइज किया, मुसलमानों की कितनी ज़बान है ये, उसका बस मैं एक चूँकि बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई है, एक छोटा सा वाक़या बताकर अब आप सब उसको उससे महसूस होंगे। एक हमारे 2 जानकार हैं, दोनों बहुत ही मारूफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। एक उर्दू स्कूल से पढ़े हुए हैं और एक हिंदी स्कूल से पढ़े हुए हैं। उपेंद्र अपना रफीरा साहब उर्दू में एक बहुत ही एक मखसूस मौके पर एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इद्दत, जब आप आबा खिदमत से तो हिंदी जो पढ़ने वाले जो हिंदी ज़बान के हैं वो गए अपने दोस्त के पास जो उर्दू ज़बान के से बाबा थे, उन्होंने कहा, उनका नाम लिया, जो भी नाम लिया, नाम नहीं बताऊँगा मैं, 2-3 बार 4 बार आवाज़ दी, 3-4 मिनट खड़े रहे और दरवाज़ा खुला हुआ था। हल्के से झाँक के देखा कि दरवाजे में क्या मसला है, आवाज़ नहीं रहे, तो देखा कि उनकी मिसेज जिनके पास गए तो उनकी मिसेज बैठी हुई थी वहाँ सहन में, अब अपना काम कर रही थी। तो उन्होंने बहुत जोर से आवाज़ लगाई, 2 आवाज़ लगाई, तो जल्दी से उनके दोस्त भागे आए, कहते क्या हो गया? कहने कि भाई मैं तो बहुत देर से आया हूँ, शायद भाभी इद्दत में बैठी हैं। तो इतनी ही मुसलमानों की ज़बान ये बात कहती है। बस मैं बात 1947 उर्दू सहाफ़त के लिए बदतरीन तारीख दौर था। उस वक्त उर्दू सहाफ़त बड़ी तादाद में माइग्रेट कर गई यहाँ से। उर्दू के बड़े अखबार जंग था, जैसे दिल्ली से निकलता था, अंजाम दिल्ली से निकलता था। ये अंजाम में ही काम करने आए थे। कुलदीप नैयर साहब ने तस्करा किया था। हवेली सामुद्दीन, जहाँ मैं पैदा हुआ, हवेली सामुद्दीन बल्ली महाराज में, वहीं पे मौलाना हसरत मोहानी ने अपने आखिरी दिन गुजारे, मेरे अखबार के दफ्तर में भी गुजारे और अंजाम के दफ्तर में भी गुजारे। उसी जगह पर सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो वहाँ उस वक्त उर्दू वालों के लिए बहुत बुरा हुआ था। उससे कबल जो है ये उर्दू था और ये दोनों ही के फाउंडर्स बानी जो है वो जनाब रामजी राव साहब ने, ये सबसे पहले इस भारत का खित्ते का, बल्कि कहा जाता है कि एशिया का उर्दू चैनल रहा है, जो 15 अगस्त सन 2001 को लॉन्च हुआ। इसी का रीब्रांडिंग 16 मार्च सन 2018 को हुआ न्यूज़ 18 उर्दू के नाम से, जब ये न्यूज़ 18 ब्रॉडकास्ट के अंदर आया। तो करीब 15 चैनल्स के हिसाब से ये एशिया का एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी तफसीलात अब बताने का कोई मौका नहीं है, लेकिन ये एक इंफोटेनमेंट चैनल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट भी है और न्यूज़ भी है। इस लिहाज से ये एक खुसूसियत रखने वाला चैनल है। जहाँ तक न्यूज़ 18 उर्दू की बात है तो इसका चैनल के साथ साथ एक बड़ा सा पोर्टल भी है। दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेबसाइट नेटवर्क इन इंडिया with regional, national and international news and 24 hours updated. It is the group is consisting of 8 languages: English, Hindi, Bangla, Marathi, Gujarati, Tamil, Kannada, Punjabi and Malayalam. And the basic source of the content, the news and the
video, the text form and the video formats is from its sister TV channels. Their field staff and the bureaus spread across the country. लेकिन जितने सारे उर्दू के अखबारात हैं वो सब कॉपी पेस्ट करते हैं। उर्दू की न्यूज़ एजेंसी यूएनआई कौमी कौंसिल के सहारे चल रही है और यूएनआई के सहारे सारे उर्दू अखबारात चल रहे हैं। और मिसाल है, मिल्लत टाइम्स हम लोगों ने 2016 में शुरू किया और मिल्लत टाइम्स ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की। क्राइम को हम लोग रिपोर्ट करते हैं, दलितों पर होने वाले अत्याचार को करते हैं, सरकार के खिलाफ लगातार लिखते हैं। तो मिल्लत टाइम्स में जो खबरें शामिल फर्स्ट हैंड, उस खबरों की बुनियाद पर अल जजीरा के रिपोर्टर ने स्टोरी की है, द गार्जियन में स्टोरी हुई है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हर जगह स्टोरी की जाती है। हमारे मिल्लत टाइम्स का जो पूरा काम है उर्दू में होता है और उर्दू में होने की वजह से यूट्यूब के हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, फेसबुक पर हमारे 1 मिलियन पेज थे जिसको फेसबुक ने डिलीट कर दिया। और कई सारी चीजें ऑर्गेनाइजर में हमारे खिलाफ खबरें शायद की जाती है कि मिल्लत टाइम्स सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो ये दावा करना कि उर्दू का इम्पैक्ट नहीं होता, और खालिद मुल्ला साहब कह रहे थे उर्दू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्यादा पेश कर रहे थे, मुझे लगता है कि सबको अपनी स्टडी दोबारा से करनी चाहिए। और सिर्फ फरामो जी ने उर्दू की खिदमत नहीं की है या सिर्फ सहारा इनकलाब ने, बल्कि जो ब्रांडेड ग्रुप है उसके अलावा लोग भी उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और ब्रांडेड ग्रुप से ज्यादा कर रहे हैं। ये इनकलाब और सहारा तो बिजनेस कर रहे हैं, मिल्ली तंजीमों का इश्तिहार ले रहे हैं, लेकिन जो वेब पोर्टल है मिल्लत टाइम्स ऐसे कई सारे नाम मिलेंगे बगैर किसी इश्तिहार के आपसे 5 रुपया रोजाना लिए बगैर आपकी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके मसाइल को उठा रहे हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं उन्हीं खबरों की बुनियाद पर फिर बड़े मीडिया हाउसेज में खबरें छपती है, उसका असर होता है। जी तो बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा मुझे कहना था इन बातों के साथ मैं ऑफिशियली जितने हमारे मेहमान कराम यहाँ जो स्टेज पर हैं, जितने नीचे हैं, जितने मुकर्रिरीन थे, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रेस क्लब का खुसूस तौर पर शुक्रिया कि प्रेस क्लब ने प्रोग्राम मुनक्किद किया, और आप सबका शुक्रिया कि आप सब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की दावत पर तशरीफ लाए। आपने अपना वक्त दिया। आखिर में शम्स तबरेज़ कासमी ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर उमाकांत लखीरा ने तमाम उर्दू सहाफ़ियों को क्लब में आने और उर्दू सहाफ़त पर गुफ्तगू करने की दावत दी। उन्होंने अपनी जानिब से हर तरह की मदद की भी यकीन दहानी कराई और उर्दू सहाफ़त को मज़ीद मौसर बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com